Now, Bismillah Rahman Rahim. Dear viewers, uh, uh, today we are discussing next chapter of strategic management, that is internal assessment. This is also one of the most important chapter. So, in the last lesson, we talk about nature of external audit, industrial organizational view. We talk about external environment analysis, particularly economic forces, social, cultural, demographic, and natural environmental forces, political, government, and legal forces, technological forces, competitive forces. We also talk about Porter's five forces model, sources of external information, forecasting tools and technique. We build EFE matrix, and we also learn to develop competitive profile matrix. So today we are discussing fourth chapter, that is internal assessment, and we are discussing, this is chapter 4, strategic management concept of cases by Fred David. So in this case, in this chapter we will learn to conduct internal audit, and we will also understand what does it mean by resource based view, and understand strategy, integration of strategy and culture. Rest of the parts of this chapter will be discussed in the next video. So today we gonna be discussing the first three elements: what is internal audit, and what is resource based view, what is culture, and why it is important to integrate with the strategy, and what is its implication for devising and implementing strategies. So this is basically, we are studying the fourth chapter of strategic management by concept and cases. So you can see from this picture. So you can see from this picture that we are discussing this fourth chapter. Internal assessment, some author have said the great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. ये reality में भी ऐसा ही होता है कि intellectuals are always criticized by mediocres or like average minds. आपकी अगर if we discuss in the context of organizations, तो large successful organizations are always being criticized by like average organizations. Weak leadership can wreck the soundest strategy. So like leadership plays a substantial role in the strategy development, its implementation, and the outcome of the strategy basically. So leadership plays a substantial role. So weak leadership can destroy or can wreck the sound strategy. Basically, why do we conduct internal audit? So there is a logic behind for conducting internal audit. So internal audit basically conducted to identify strengths and weaknesses, particularly in the areas of management, marketing, finance and accounting, production, operations, research and development, management information systems. Basically internal audit कंडक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उसको डिटरमिन करने के लिए. और इन दिस ऑडिट बेसिकली वी फोकस, वी चेक द मैनेजमेंट skills of the company, marketing areas, finance and accounting, production and operation, research and development, and MIS, management information systems. इनमें ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक स्ट्रांग है, किस हद तक वीक है. ऐसा क्यों करते हैं? Why do we conduct internal audit basically? So, because internal audit, external audit, or vision and mission, basically these three things help us in the strategy formulation of strategies and objectives and decide organizational objectives. तो इसलिए
इंटरनल ऑडिट भी हमें करना पड़ता है ताकि हम ये ट्रेस आउट कर लें कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। और इसी तरह हमें एक्सटर्नल ऑडिट भी करना पड़ता है ताकि हम ये देख लें कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं हमारे पास और थ्रेट्स हम कौन से फेस कर रहे हैं और हमारा गेम प्लान क्या है बेसिकली फ्यूचर में, तो सो दैट हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज गेम प्लान कर लें। तो इंटरनल ऑडिट बेसिकली internal audit, both internal audit, external audit, and evaluation of mission is very important for formulation of strategies. क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, मकसद यही है before doing this because we do conduct this internal analysis, internal audit. The objective is to formulate the strategies and basically to formulate those strategies based on distinctive competencies. जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये डिटरमिन कर लेना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, और ऐसी स्ट्रेंथ जो दूसरों के पास ना हो, जो दूसरों से बेहतर हो, जो दूसरे उसको आसानी से कॉपी ना कर सकते हो। तो इट मीन्स द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, वी नीड टू आइडेंटिफाई organizational strength that cannot be imitated, that cannot be copied by our competitors. जब हमने उस स्ट्रेंथ को, उस अपनी क्वालिटी को, उस खूबी को, उस स्किल को जब हमने ट्रेस कर लिया, तो वो जो स्किल है, दैट स्किल, दैट क्वालिटी, दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। वो आपकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है, वो जो स्ट्रेंथ है। अब आप if you are getting an edge based on that distinctive competency, तो वो आपका competitive advantage है। So that is your competitive advantage. So building competitive advantage involves taking advantage of distinctive competencies. So it's mean until and unless you are not identify your competency, distinctive competencies, you cannot build competitive advantage. अगर आपकी डिस्टिंक्टिव वो कंपिटेंसी नहीं है, आपकी वो स्किल बेहतर है अपने कंपेटिटर से, उसी के बेसिस पे अपने कंपेटिटिव एडवांटेज बना लिया, तो हो सकता है कंपेटिटर उसको बड़ी आसानी से इमिटेट कर ले और उसी तरह की स्किल वो भी बिल्ड कर ले। हो सकता है आपके पास एक अच्छी बिल्डिंग हो आपकी कंपनी के पास, तो ठीक है, ये एक बेहतर आपके पास एक रिसोर्स है, लेकिन कंपेटिटर हो सकता है 6 महीने बाद इससे भी अच्छी बिल्डिंग बिल्ड कर ले, तो इट मीन वो जो एज आपके पास अवेलेबल था वो खत्म हो गया। तो कंपेटिटिव एडवांटेज आपने ऐसी चीजें पे, ऐसी बेसिस पे बिल्ड करना है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करें, ऐसी कॉम्पिटेंसीज जो कि आसानी से इमिटेट ना हो, जो आसानी से कॉपी ना की जा सके, and then use those competencies to build an advantage, to get an advantage over your competitors, so that gonna become a competitive advantage. और वो जो एडवांटेज आप इस तरीके से बिल्ड करोगे तो वो लंबे अरसे तक चलेगा। मसलन आपने अपने लोगों को ट्रेन कर लिया प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब ये एक ऐसा स्किल है, ऐसी खूबी आपने पैदा कर ली अपने एम्प्लॉयज में जो कि आसानी से लोग इसको कॉपी नहीं कर सकेंगे। तो आप उन्हीं स्किल्स, उसी कॉम्पिटेंसीज की बेसिस पे आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपके पास आपकी प्रोडक्ट दूसरे कंपेटिटर से बड़े अरसे तक मुख्तलिफ होंगी और बड़े अरसे तक आपकी अच्छी कंसीडर की जाएंगी, और कंपेटिटर को ये खूबी एक्वायर करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। तो इट मीन्स कि फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कंपेटिटिव डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, ऐसी स्ट्रेंथ जो कंपेटिटर के पास ना हो, फिर उसी स्ट्रेंथ को यूज करें और अपनी स्ट्रेटजीज में, अपनी कंपनीज के डिसीजन में, और एक एडवांटेज लेने की कोशिश करें। दैट गोना बी कॉल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज, और इस तरह वो कंपेटिटिव एडवांटेज लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेज होगा। और ये कंपिटेंसीज को ट्रेस आउट करना और उनको आगे कंपेटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट करना हम ये नहीं कर पाएंगे जब तक हम इंटरनल ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट to
to identify distinctive competencies and to convert those competencies into competitive advantage. तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है. अब ये हमें कैसे कंडक्ट करेंगे competitive internal audit basically. तो internal audit, in order to conduct internal audit, we have to gather information. और किससे लें, कहाँ से लें, किन एरियाज के बारे में लें, ये हमें पता होना चाहिए. तो इट मीन्स हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी है कहाँ से, कि मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग एरियाज के बारे में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो हमने वो इंफॉर्मेशन इन सारे एरियाज के बारे में कलेक्ट करनी है. वी गोना बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो. लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट में वी गोना बी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल ऑडिट बेसिकली एक is an involvement in performing internal strategic management audit, provides a vehicle for understanding the nature and effects of decision in other functional business areas of the firm. तो like basically that is the purpose of internal audit, कि हम ये देख सकें कि हमारे जो डिसीजंस हम करते हैं इनके बिजनेस एस्पेक्ट्स पे जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं. तो ये डिटरमिन करने के लिए तो हम ऑडिट करते हैं. तो दैट्स व्हाई इन द प्रीवियस स्लाइड वी डिस्कस दैट वी गोना बी कलेक्टिंग फॉर इंटरनल ऑडिट, वी गोना बी कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, MIS. और हमने इन्हीं एरियाज पे हमारे डिसीजन जो हमने किए, मैनेजमेंट डिसीजन का क्या इम्पैक्ट है, तो उसके लिए हमें इंटरनल ऑडिट करना पड़ता है. अब इंटरनल ऑडिट करने के लिए हम क्या करें बेसिकली. पहले तो हमने ये देख लिया कि इंटरनल ऑडिट करने के लिए हम इन एरियाज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. और उससे आगे कर लें कि मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल एरियाज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. तो वी गोना बी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल द एरियाज. और वो एरियाज कौन से, मैनेजमेंट, HR, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जो अभी मैंने डिस्कस की. A team of manager then select 10 to 15 key organization strength and weaknesses to focus on. तो अब बेसिकली उन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस एरियाज, बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन यू गोना बी आइडेंटिफाइंग योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. 10 to 15 लाजमी नहीं कि 10 to 15, आप 15 to 20 कर ले. तो इट मीन्स कि फर्स्टली यू नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज बिजनेस एस्पेक्ट्स एंड देन आप उनको बैठ के प्रायोरिटाइज कर लें कि इनमें से कौन सी हमारी स्ट्रेंथ बनती है, किन एरिया में हम we were strong, and the areas in which we are weakness, basically we need to list them down. इस तरह फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, तो फाइनेंस के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें. सो लाइक दैट इज इंटरनल ऑडिट. अब हमने इंटरनल ऑडिट मेरे ख्याल में हम अंडरस्टैंड कर चुके. तो अगेन इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ कि बेसिकली इंटरनल ऑडिट में वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट different aspects of business, and particularly this information gonna be available, this information will be internal to the company, and in this audit we will be collecting information from different aspects of business. फिर उनको हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे. जो 8-10 लोग जो भी मैनेजर आपके जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं उनके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें एंड देन ग्रुप देम इनटू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. यही बेसिकली इंटरनल ऑडिट है. और यही आपकी हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में. और यही आपकी हेल्प करेगा कि हमने किन बेसिस पे अपने कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड करना है. इट मीन इन अदर वर्ड्स इट गोना हेल्प यू आउट. दिस इंटरनल ऑडिट विल हेल्प यू आउट in identifying competitive distinctive competencies and building competitive advantage. हाँ, तो दैट वाज इंटरनल ऑडिट. अब एक व्यू है रिसोर्स बेस्ड व्यू. ये थ्योरी कह लें आप. ये कहती है कि कंपेटिटिव अगर एडवांटेज बिल्ड करना है तो उसके लिए आपके इंटरनल रिसोर्सेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल फैक्टर्स. रिसोर्स बेस्ड व्यू कहता है, जिसने भी ये थ्योरी प्रेजेंट की,
दिस थ्योरी सेज कि अगर आप कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड करना चाहते हैं तो इन ऑर्डर टू बिल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज इंटरनल रिसोर्सेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। और वो कहता है कि वो इंटरनल रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, वो कौन से हो सकते हैं। वो कहते हैं कि दोज इंटरनल रिसोर्सेज कैन बी ईदर फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज अब कौन से हो सकते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज इट्स मीन इन रिसोर्सेज की बेसिस पे भी बिल्ड हो सकता है। लेकिन मैंने एक आपको बात बताई थी कि कंपेटिटिव एडवांटेज हमेशा बिल्ड करना है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज पे। और डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं, वो कॉम्पिटेंसीज जो कंपेटिटर इजीली इमिटेट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, उन बेसिस पे हमने एडवांटेज बिल्ड करना है। तो फिजिकल रिसोर्सेज में मींस आपके पास अच्छी बिल्डिंग है, आपके पास प्लांट है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास लैंड है, लोकेशन हो सकती है, जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, आपके पास अच्छे व्हीकल्स हैं, मशीनरी अवेलेबल है। तो लाइक दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज। अगर आपके पास आज अच्छी बिल्डिंग है तो लाइक जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, तो ये आपका डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज नहीं है, क्योंकि अगर कंपेटिटर के पास थोड़े से रिसोर्सेज आ गए तो वो आपसे अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो वो हमारा जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह हमारे पास अच्छी मशीनरी है तो कंपेटिटर आसानी से अच्छी मशीनरी बना सकता है। या तो ये करें कि हम मशीनरी अपनी बनाएं और वो अच्छी हो, देन इट इज लाइक ऐसी कंपिटेंसी हमने बिल्ड कर ली कि जो कि दूसरे उसको इमिटेट नहीं कर सकते, तो ये हमारी डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज होगी। इस तरह ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स अब मसलन उसकी ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयज कैसे हैं, वो कितने ट्रेंड हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास स्किल्स कैसी हैं, वो कॉम्पिटेंट कितने हैं, वो इनोवेटिव कितने हैं, तो ये भी रिसोर्सेज। अगर आपके एम्प्लॉयज वेल ट्रेंड हैं और बड़े कॉम्पिटेंट हैं और लाइक बड़े ही स्किलफुल हैं, इनोवेटिव हैं, तो दैट इज डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, बिकॉज अच्छा लोग तो आपके पास हैं, तो वो मार्केट से तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। So like that could be distinctive competencies. So that is human resources. Organizational resources. Organizational resources में means आपके पास information system कैसे हैं, databases कैसे हैं, planning कैसे करते हैं, आपके processes क्या हैं, infrastructure आपके पास कैसा है, structure कैसे हैं, like these are called organizational resources. Resource base ये कहता है कि if you want to build a competitive advantage, internal resource gonna matter more than your external resources. और internal resources मैंने क्या बताया कि those resources can be categorized into physical resources, human resources and organizational resources. और these resources will help you to build competitive advantage. लेकिन मैंने कहा कि रिसोर्स, कौन से रिसोर्स आपने यूज करने हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे रिसोर्सेज है कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, but you need to use those resources for building your competitive advantage, or to, in other words, to use those resources in your strategies for building your competitive advantage, which are rare, hard to imitate and not easily substitutable. ऐसे होने चाहिए आपके पास रिसोर्सेज। तो आपने इन रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना है और उन रिसोर्सेज को ढूंढना है, और ऐसे रिसोर्सेज आपने इंटरनल जब ऑडिट करें तो वो सर्च करें विच आर रेयर, हार्ड टू इमिटेट एंड हुज सब्स्टिट्यूट इज नॉट इजीली अवेलेबल। तो ये वो रिसोर्सेज होने चाहिए। अब इन रिसोर्सेज को आप यूज करें, और ये अगर कोई आपके इस तरह के रिसोर्सेज, वो आपकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज होगा, एंड देन ट्राई टू बिल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज ऑन दिस। आई होप आपको रिसोर्स बेस्ड व्यू भी अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू, अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज इट। द रिसोर्स बेस्ड व्यू assumes that internal resources are more important than external factors in order to build competitive advantage. और competitive advantage build करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं which fall into 3 categories: physical resources, human resources and organizational resources. और आपने इन रिसोर्सेज में से आपने वो रिसोर्सेज फाइंड करने हैं जो कि रेयर हों, हार्ड टू इमिटेट हों एंड जिसके सब्स्टिट्यूट आसानी से अवेलेबल ना हो, और उनको यूज करके आप कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स बेस्ड व्यू। अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस वीडियो का, वो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड कल्चर। एक चीज माइंड में रखना,
culture plays a substantial role in the formulation and implementation of strategy. वही कल्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है और उस वो कल्चर जो है चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता. दैट्स वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मैनेजमेंट डिसीजंस. इट मीन उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बड़ा पैथेटिक है, बड़ा पुअर कल्चर है. अब कल्चर, अगर आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी आपके कल्चर के साथ मैच करनी चाहिए. अगर आप फैसले ऐसे कर रहे हैं जो कि कल्चर के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो देन उसमें आपको बहुत सारी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा. तो आपको गेम प्लान चार्ट करना है कि उस कल्चर को कैसे चेंज किया जाए ताकि हम वो जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव कर पाएं. और ये इंक्रीमेंटल होगा. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली क्या है कि आप काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हैं. पैटर्न ऑफ बिहेवियर डेवलप बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट लर्न टू कोप विद प्रॉब्लम एक्सटर्नल अडैप्शन एंड इंटरनल इंटीग्रेशन. कि वो जो बिहेवियर है, लाइक हाउ डू यू कैरी ऑन योर बिजनेस, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैरी ऑन इट्स बिजनेस, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली अडॉप्ट एक्सटर्नल चेंजेस, वो कैसे करती है ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को. तो वो बेसिकली जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, काम करने का तरीका लोगों का, वो उसका एक कल्चर है. एंड कल्चर कुड बी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. कल्चर आपकी चेंज के लिए सपोर्टिव भी हो सकता है और वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है. अगर आपका कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को कोप अप करने के लिए बड़ा लाइक फेवरेबल है और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो आप उसको एक ऐसा कल्चर आप न्यू मेंबर्स को सिखाएं. तो ऐसा कल्चर को तो हम वैलिड कंसीडर करें कि दिस कल्चर इज वैलिड, अप्रोप्रिएट है एंड टॉट टू न्यू मेंबर्स एज द करेक्ट वे टू परसीव, थिंक एंड फील. तो लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कल्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज. मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि वो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रेजिस्टेंस भी कर सकता है जो आप डिसीजन कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिसीजन, और वो कल्चर आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकता है और वीकनेस भी बन सकता है. अगर कल्चर सपोर्टिव है तो दैट इज योर स्ट्रेंथ, और कल्चर अगर सपोर्टिव नहीं है तो दैट इज वीकनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन नया डिसीजन कर ही नहीं सकती. लाइक तो कल्चर बड़ा मैटर करता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो या कंट्री कल्चर. अब पाकिस्तान की बात करें हम, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बड़ी हाई रैंकिंग है हमारी. तो अब अगर हमको ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस लाने की बात करें तो लाइक हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि हमारा कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता. ये अब एक वीकनेस है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन करने के लिए. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसका कल्चर भी एक वीकनेस भी हो सकता है एंड इट कुड बी स्ट्रेंथ. अब कल्चर में क्या बातें होती हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. और ये मैं कहता हूं कि कल्चर की बेसिकली इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो योर कल्चर मस्ट इंटीग्रेट विद द स्ट्रेटजी दैट यू हैव अडॉप्टेड in your organization or you are going to implement in your organization. कल्चर में सबसे पहले तो बिलीफ देख लें. बिलीफ ये कि आप किस चीज को पे फुली डिटरमिन्ड है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक इस पे तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं. बिलीफ मतलब मेरिटोक्रेसी के मेरिट को आप कितनी वैल्यू देते हैं. अगर आप सारे हम कहते हैं यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ग्रो करने वी वांट टू ग्रो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन तो वी मस्ट इंश्योर वी नीड टू कंडक्ट हार्ड वर्क, वी नीड टू बी रेगुलर, वी नीड टू बी लाइक शो परफॉर्मेंस. अगर हमारा बिलीव है कि यहाँ मेरिट पे काम होते हैं सारी चीजें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज भी हम ऐसी चीजों को ही देंगे. फिर हम किन चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, हम कहेंगे टाइम पे आने को इंपॉर्टेंस देंगे. वी गोना गिव वैल्यू टू हार्ड वर्क, वी गोना गिव वैल्यू टू परफॉर्मेंस, वी गोना फोकस आवर जॉब, वी ट्राई टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स.
तो हम इन चीज़ों को वैल्यू देंगे। अब हमने ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स बिलीव्स क्या है। मतलब हम सम टाइम हम बिलीव करते हैं कि अच्छा काम ना सिफारिश से हो जाता है, हम सब बिलीव करते हैं कि अच्छा हर डिपार्टमेंट में ना काम रिश्वत से हो जाता है। ये एक बिलीव्स है। अगर बिलीव्स ऐसे हैं तो हम वैल्यूज भी ऐसी चीज़ों को देते हैं। वो वैल्यू फिर किनको देंगे? लोगों के हम तोहफे भेजेंगे, वी गोना बी सेंडिंग देम गिफ्ट्स, वी गोना बी ब्राइबिंग देम, वी गोना बी अप्रोचिंग देम, हम उनके फैमिली मेंबर से जाके मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हम इन चीज़ों को वैल्यू देंगे। तो इसीलिए कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिलीव्स, कि किधर कौन सी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, किस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जी एम्बेडेड है, इसके बगैर हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। तो वो बिलीव्स है। फिर अगर बिलीव्स की बेसिस पे वैसी वैल्यू डिटरमिन होती है कि वैल्यूज केम फ्रॉम बिलीव्स, तो बिलीफ को देखना चाहिए कि वो किस हद तक सपोर्टिव है। फिर राइट्स एंड रिचुअल्स। राइट्स मींस बेसिकली ये तो रिलीजियस एक टर्म है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी हम हमारा रिलीजियस सेरेमनी है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में तो ये है कि हम हमारी ये राइट्स हैं कि हम जो ईदें मनाते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ये हमारी राइट्स हैं। अब हम किस तरीके से उनको सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिचुअल। अब सिमिलरली मैरिज इवेंट्स हैं, तो मैरिज कैसे होती है मुस्लिम कम्युनिटी में, दैट इज राइट। और वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर कितने फंक्शन किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिचुअल्स। सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मींस ऑर्गेनाइजेशन समटाइम कहती है कि हमने हमारे यहाँ हर साल एनुअल फंक्शन होगा जिसमें हम बेस्ट परफॉर्मर की प्रमोशंस भी देंगे, उनको बोनसेस भी देंगे, अवार्ड्स भी देंगे, सर्टिफिकेट्स भी देंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस कंटिन्यू है और वो हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं और फुली कन्विंस है कि ये हर सूरत में होना ही होना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स। वो 6 मंथ भी हो सकते हैं, वो मंथली भी हो सकते हैं, वो एनुअल भी हो सकते हैं। अब वो राइट्स को सेलिब्रेट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, डेटा कैसे आएगा, हम कौन कंपाइल करेगा, कब हम उनकी वो चीज़ों पे हम डिक्लेरेशन देंगे, तो and how it gonna be celebrated, that whole process is called rituals. So if we want to understand the culture of an organization तो हमें उसके beliefs को भी देखना पड़ेगा। We need to look into their values, we need to look into their rights and then rituals। हमें myths भी organization में देखनी पड़ेंगे जिनका कोई reality से कोई लेना देना नहीं है, कि क्या चीज़ exist करती हैं। myths क्या है, किस चीज़ों की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जानी जाती है, क्वालिटी की वजह से, क्वांटिटी की वजह से, लो प्राइस की वजह से, हम किन चीज़ों की वजह से हम जाने जाते हैं, सिंबल्स, हार्डवर्क की, ऑनेस्टी की वजह से, इंटीग्रिटी की वजह से, कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रिलेशनशिप की वजह से, फेयरनेस की वजह से, ऑनेस्टी की वजह से। हमारे हीरोज कौन है बेसिकली, किन किन लोगों को हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स देती है, वी नीड टू बी एंड हु आर द लेजेंड्स बेसिकली, हीरोज एंड लेजेंड्स, कि जिनको हम अवार्ड्स देते हैं वो कौन है, ऑर्गेनाइजेशन किन को प्रमोट करती, उन्होंने ऐसा क्या किया। तो दोज हीरोज एंड लेजेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे तो देन हमें पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, कि यहाँ फेयरनेस है, ऑनेस्टी है, मेरिट है या नहीं है, या रिलेशनशिप बिल्डिंग की बेसिस पे काम होते हैं। तो these things are important for understanding the culture। और जब ये अंडरस्टैंड कर लेंगे आप कल्चर को, तो फिर देन यू कैन डिटरमिन कि वो जो स्ट्रेटजी आप फार्मुलेट करने जा रहे हैं, जो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या ये कल्चर उसको सपोर्ट करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी स्ट्रेटजी, योर स्ट्रेटजी मस्ट बी इंटीग्रेटिंग योर कल्चर। और कल्चर को जानने के लिए मैंने चंद चीजें आपके साथ ये शेयर कर ली हैं, इनका आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, आप इस तरह का एक क्वेश्चनर भी बना सकते हो जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर योर ऑर्गेनाइजेशन हैज। मसलन स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, अर्ली अराइवल एंड लेट लीव लेट। अब ये एक ट्रेट है। अब ये एक वैल्यू, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट है तो शायद ये आपकी एक वैल्यू होगी कि आप
टाइम पे आएंगे और देन यू कैन लीव लेट, तो आप इसको देख लें कि ऑर्गेनाइजेशन में ये किधर खड़े हैं. हाई एथिकल बिलीव्स, क्लियर कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स फॉलो, कि जो भी बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं यू गोना बी फॉलोइंग दोज बिजनेस प्रिंसिपल्स. ये एक बिलीफ है कि आप इसे वायोलेट नहीं कर सकते. फॉर्मल ड्रेस लाइक शर्ट टाई एक्सपेक्टेड, इनफॉर्मल ड्रेस मेनी कैजुअल ड्रेस डेज. इससे आप डिटरमिन करें कि लोग कितना फॉर्मल हैं, कितने लाइक कैजुअल हैं. सोशलाइज टुगेदर आउटसाइड ऑफ वर्क, तो ये बेसिकली किस हद तक हम लाइक सोशलाइज कर रहे हैं, हमारा कल्चर कितना है. डोंट क्वेश्चन सुपरवाइजर्स डिसीजंस, समटाइम हम लोगों की इंटेंशंस पे लाइक डाउट करते हैं कि बॉस इज नॉट मेकिंग द राइट डिसीजंस. तो ये कल्चर आपने डिटरमिन करना है कि लोग क्या सोचते हैं. अगर लोग ऐसे सोचते हैं कि दे ऑलवेज क्वेश्चन द सुपरवाइजर्स डिसीजंस, तो फिर क्या होगा, वो जो भी डिसीजन करे वो कहेंगे ये ना सही नहीं कर रहा. इनकरेज विसल ब्लोइंग, क्या ऐसा हो रहा है कि कोई अच्छी बुरी प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो लोग उसको हाईलाइट करें कि ये बुरी हो रही है. हैव वेलनेस प्रोग्राम, अलाउ सब्सटेंशियल वर्किंग फ्रॉम होम, encourage creativity, innovation and openness, support women and minorities, no glass ceiling, being highly socially responsible, be philanthropic. यानी कि किन किन चीज़ों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है. इनोवेशन को, वर्क फ्रॉम होम को, हेल्थ कॉन्शियस है कितनी मीटिंग्स करते हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल पे बिलीव करते हैं या नहीं, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं. लाइक ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसी लाइक इंडिकेटर्स हैं जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेंगे. तो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर और दीज क्वेश्चन आप उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो. और मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी. और मैंने ये भी जिक्र किया था कि इट कुड रेजिस्ट द चेंज एंड इट कुड बी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. अच्छा कल्चर है तो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी हेल्प करेगा आपको नए डिसीजन मेकिंग करने में, आपको आपके न्यू डिसीजंस में, इम्प्लीमेंटेशन में. लेकिन अगर वो कल्चर सपोर्टिव नहीं है तो दैट इज वीकनेस और इट गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल. तो अगर कल्चर सपोर्टिव नहीं है तो यू गोना बी मिसिंग एक्सटर्नल चेंजेस और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हेल्ड बिलीव्स. सो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि कल्चर क्या है. कल्चर की मैंने सेवरल एस्पेक्ट्स बताए कि अगर इफ यू वांट टू एवेलुएट द कल्चर तो उनमें इन सारी चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें और इन पैरामीटर्स पे देखें एंड देन डिटरमिन करें टू व्हाट एक्सटेंट योर कल्चर इज सपोर्टिव फॉर strategy like for the strategy that you are going to implement. इसलिए कल्चर को भी आपको रेट करना चाहिए कि आपका सपोर्टिव है या नहीं है, स्ट्रेंथ है या आपकी ये वीकनेस है. तो जब तक आप अपने इन सारे पैरामीटर्स पे काम नहीं कर लोगे तो आप राइट डिसीजन नहीं कर पाओगे. तो देयरफॉर इट इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड कि आप कल्चर को भी देखें और देन और इंटरनल ऑडिट भी कंडक्ट करें और उसमें कल्चर को भी देखें एंड देन मेक डेवलप और फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें. तो ये हमने अपने चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है और इसका सेकंड जो पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं और आई होप कि उसको मैं कोशिश करूँगा कि वो भी हम अपलोड कर दें. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. और इन वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पे एक्सेस करने के लिए इट्स बेटर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.